حلالی شہری ہے وہ کبھی سندھ کی تقسیم نہیں چاہے، وہ سندھ کا باشندہ نہیں سمجھتے، نکل جائے۔ یہ بات کوئی اور نہیں کہہ رہا بلکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما، ایک وقت میں ڈپٹی اسپیکر تک کے عہدے پر اور کسی زمانے میں گورنر سندھ تک کے عہدے پر یعنی کہ قائم مقام کے طور پر رہی ہیں۔ اس وقت ایم این اے ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہے کہ وہ سندھ کا باشندہ نہیں سمجھتے، نکل جائے۔ کہ اگر کسی نے مانگا تو اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، مگر کہانی یہاں پر آ کر رکتی نہیں ہے۔ کلو کلو کے موجر تھوکے کے چوے تو پاکستان ساجوڑے پاکستان جو ہے سندھ جی دھرتی ہے، سندھ لسا مرندا۔ یہ کہانی آپ ایک اور سنیے۔ یہاں پر اس بات کا مقصد یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ نہ پاکستان کو تسلیم کر رہے ہیں، نہ پاکستان کے آئین کو تسلیم کر رہے ہیں، بلکہ وہ بذات خود ایسی ویڈیوز بنا کر اس بات کو ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جناب ہم پاکستان کے خلاف ہیں۔ کلو کلو کو موجر تھی اسے سندھ تے قبضہ تو کری۔ بات یہاں تک نہیں رکی ہے، اب ایک اور ویڈیو ذرا دیکھیے، پھر ہم کہانی کو کھول کر آپ کے سامنے رکھنے والے۔ ہمیں بولا یہ ترانے بند کرو۔ اچھا پاکستانی ترانہ کیوں چلایا ہوا آپ نے؟ یہ بند کرو، اس سے کیا ہے آپ کو ملے گا؟ اب آپ نے یہ بات سنی کہ جس میں ایک صاحب یہ فرماتے ہیں کہ نواب شاہ کے اندر وہ پاکستان کے جھنڈوں کا اگر اسٹال لگاتے ہیں تو انہیں زد و کوب کیا جاتا ہے، انہیں کہا جاتا ہے کہ اسٹال بند کر دیا جائے۔ آج کے پروگرام میں ہم آپ کو یہ بات بتانے والے ہیں کہ در حقیقت یہ پاکستان میں ایڈمنسٹریٹو یونٹس یا پاکستان کو مضبوط کرنے کے حوالے سے جو گفتگو چل رہی ہے، ان کے مخالفین پاکستان کو مضبوط کرنے یا ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی حمایت کر رہے ہیں، یا پھر وہ پاکستان توڑنے کے نعرے لگا رہے ہیں، اور اس میں کون کون سی جماعت براہ راست ملوث ہے یہ بات ہم آپ کو سمجھائیں گے نہیں بلکہ دکھائیں گے، لیکن ایک شرط پر کہ ڈریے گا نہیں، جھجکیے گا نہیں، گھبرائیے گا نہیں۔ ہوائیں جتنی بھی تیز ہوں آپ کو ڈرنا نہیں ہے، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے، کوئی لاپتہ نہیں کرے گا۔ آئیے اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اپنے پروردگار کے شکر سے۔ جب سے یہ معاملہ ایک بار پھر سے زیر غور آیا ہے، یا پھر جب سے محسن نقوی نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ پاکستان کے اندر ایڈمنسٹریٹو یونٹس بننے چاہیے اور موجودہ نظام انتہائی فرسودہ ہو چکا ہے، اس کے بعد سے سندھ کے اندر مختلف قوم پرست جماعتیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ترجمان، پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ایم این ایز اس بات کا بار بار ذکر کر رہے ہیں کہ جو صوبہ مانگے گا اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ اس کی ایک چھوٹی سی جھلک میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ ایک زمانے میں سندھ کی ڈپٹی اسپیکر، ایک زمانے میں قائم مقام گورنر، اور ایک زمانے میں منسٹر، اور اس وقت ایم این اے کی حیثیت سے شہلا رضا موجود ہے۔ تو آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی کی سوچ کا ذرا سا عکس آپ دیکھیے، اور اس کے بعد ہم گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ حلالی شہری ہے وہ کبھی سندھ کی تقسیم نہیں چاہے، وہ سندھ کا باشندہ نہیں سمجھتے، نکل جائے۔ یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ ہے شہلا رضا صاحبہ۔ انہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی ترجمان بھی تسلیم کیا جا سکتا ہے۔ کیوں تسلیم کیا سکتا ہے؟ کیونکہ یہ اکثر پاکستان پیپلز پارٹی کی ترجمانی مختلف ٹی وی چینلز پر مختلف جگہوں پر کرتی آئی ہے۔ ان کے اس بیان سے یہ بات واضح طور پر نظر آتی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس طرح کا بیان دینے سے انہیں روکا نہیں ہے۔ اس بیان میں وہ صوبوں کی مخالفت نہیں کر رہی ہے، بلکہ صوبہ مانگنے والوں کو نہ صرف حرامی قرار دے رہی ہے، بلکہ انہیں گالی دیتے ہوئے یہ کہنے کے ساتھ ساتھ انہیں یہ کہہ رہی ہے کہ اس ملک سے چلے جاؤ۔ یعنی کہ وہ بذات خود اگر وفاق کے اندر یا پنجاب کے اندر کوئی صوبہ مانگے گا تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی اسے بھی حرامی قرار دے گی، اور اسے حرامی قرار دینے کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی وہاں پر انہیں بھی یہ کہے گی کہ پنجاب چھوڑ کر چلے جاؤ؟ میں نے یہ سوال کیوں پوچھا ہے؟ گھنٹیاں بجنا شروع ہو گئی ہیں۔ یہ سوال انتہائی اہم اس لیے کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کئی حلقے پنجاب میں صوبہ بنانے کے حوالے سے باقاعدہ حمایت کرتے رہے۔ گزشتہ دنوں کشمیر کے اندر بلاول بھٹو زرداری نے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا کہ اگر پنجاب کے لوگ اگر اپنا صوبہ مانگیں گے، اگر ان کا حق ہوگا تو بالکل ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، لیکن انہوں نے سندھ کا نام نہیں لیا تھا۔ یعنی کہ
जो शख्स अगर सिंध में सूबा मांगेगा और पाकिस्तान जो यानी अगर ये बात फार्मूला लगाया जाए कि जनाब जो कोई भी इस पूरे मुल्क के अंदर सूबा मांगेगा तो उसे हरामी करार दिया जाएगा, तो फिर इसका मतलब वाज़ेह तौर पर यह होता है कि जो पंजाब में भी सूबा मांगेगा उसके लिए भी क्या शहला रजा साहिबा यही लफ्ज इस्तेमाल करेगी? बड़ा खेल शुरू हो। हमारा मौक़िफ़ ये नहीं है, बल्कि यहाँ पर एक बात को वाज़े करना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी न सिर्फ सूबे की मुखालफत में बल्कि सूबे की मुखालफत में इस हद तक है कि वो इस तरह की ज़बान और लबो लहजा भी इस्तेमाल कर रही है। मगर सवाल अगला चलता है, मगर क्या जो लोग सूबे की मुखालफत कर रहे हैं वो तमाम के तमाम लोग क्या वाकई में सूबे की मुखालफत कर रहे हैं या फिर वो पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम नहीं कर रहे हैं? आइए इसकी एक सबसे बड़ी मिसाल देते हैं, जो कि बाकायदा एक कौम परस्ती का झंडा लिए हुए एक साहब क्या फरमाते हैं। जरा सा आप ये सुनिए तो आपको अंदाजा होगा कि हम गुफ्तगू को क्या कहना चाह रहे हैं। नानी न थोजे कलो के मोजरे ठोके के चवे तो पाकिस्तान साजोड़े पाकिस्तान जो ए सिंध जी धरती आ ए सिंध ला समरंदासी रत वाइंदासी तू जो कलो के गल्हाण सिखिया पहुंचवे दस पाकिस्तान जो असा पाकिस्तान घोई मनियो नाई। इस पूरी गुफ्तगू से आपको इस बात का अंदाजा हो गया होगा, अगर आप मुख्तलिफ कौम परस्त रहनुमाओं की खुद गुफ्तगू सुनिए तो आपको ये अंदाजा होगा कि वो अगर पाकिस्तान के हवाले से कोई भी बात की जाए, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के हवाले से या इंतजामी तौर पर वो ढांचा जो कि इन्हें मंजूर ना हो, अगर उसकी गुफ्तगू की जाए तो यकीनी तौर पर वो पाकिस्तान के खिलाफ गुफ्तगू करने लग जाते हैं, बल्कि पाकिस्तान से नफरत का इज़हार करने लग जाते हैं। आज जब मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ 13 और 14 अगस्त की दरमियानी शब है, आज पूरे पाकिस्तान के अंदर यौम आजादी मनाया जा रहा है और हम भी ज़ाहिर यौम आजादी मना रहे हैं। पाकिस्तान का जश्न है और ये हमारे आबाओ अजदाद की कुर्बानी है, लेकिन अगर जो आबाओ अजदाद की कुर्बानी हो और उस कुर्बानी के में अगर कुछ लोग इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हो कि जो न सिर्फ पाकिस्तान को तोड़ने की बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल गुफ्तगू कर रहे हो, तो ये क्या जाहिर करता है? अब जरा इसी बात को हम यहीं रहते हैं। सिंध के अंदर इस वक्त हुकूमत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के जेर असर ये तमाम के तमाम स्लोगन चल रहे हैं। मैं माजी के अंदर आपको चंद मिसालें देना चाहता हूं कि जब एक जमाने में एनक्यूएम पर यह वक्त आया था और उनकी तरफ से ये स्लोगन आए थे, तो आपको याद होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान किया था। पिछले दिनों जब खास तौर पर डंपर के हवाले से अगर रैलियां निकल रही थी और डंपर में मुश्तइल अफराद अगर किसी चीज को जला रहे थे, तो उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ये था कि हर सूरत हाल में अमन व अमान को कायम रखा जाएगा और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उनके न सिर्फ उनके लोगों को गिरफ्तार किया गया बल्कि अब्बास अहमद साहब के साथ एनक्यूएम के कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। अगर पाकिस्तान के खिलाफ कोई पोस्ट आ जाती है तो एनक्यूएम के एक रहनुमा को अभी हालिया दिनों के अंदर भी एनसीसीआई ने गिरफ्तार किया है। मगर सवाल ये उठता है कि वो लोग जो पाकिस्तान की अवाम के लिए कि जो कि सूबे की गुफ्तगू कर रहे हैं, उसके लिए अगर शहला रजा इस तरह की गुफ्तगू करती है और सिंध हुकूमत के अंदर में सिंध है और वहां पर अगर कुछ लोग बाकायदा झंडा उठाए हुए इस तरह का स्लोगन पाकिस्तान के खिलाफ लगाते हैं, तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं करती? और क्या वजह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके जेर सरपरस्ती रहती है या फिर उनको उनकी सरपरस्ती करती है? सवाल ये बहुत ही अहम इसलिए उठ रहा है क्योंकि जाहिर है अगर एक चिंगारी आप उठाते हैं तो फिर बाकी तेल लगाने का काम कोई और कर देता है। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस तरह का लबो लहजा अपनाती है तो फिर यहाँ पर भी यही होगा। मगर कहानी यहाँ पर रुकती नहीं है। कहानी यहाँ पर इसलिए नहीं रुकती कि एक तो ये बात हो गई कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बाकायदा सिंध के हवाले से किस तरह की गुफ्तगू कर रही है, फिर दूसरा मामला ये आ जाता है कि किस तरीके से उनकी हुकूमत के जरिए से लोग किस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं। चलिए वो पाकिस्तान के जश्न आज़ादी के खिलाफ है तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, मगर अब मामला कहाँ पर आकर बढ़ता है? नवाबशाह के अंदर ऐसे तमाम ठेले या ऐसे तमाम स्टॉल्स लगाए हुए थे कि जहां पर पाकिस्तान के परचम फरोख्त हो रहे थे और जश्न आज़ादी की तैयारियां अपने उरूज पर चल रही थी। वहां पर क्या वाकया रोनुमा होता है, जरा सा मैं चाहूंगा कि आप इस वाकये को सुने और जरा गौर से समझें। जी भाईजान, क्या नाम है आपका? सरदार मोहम्मद शरीफ गजनवी। ये कौन सा इलाका है? सर गरीबाबाद। गरीबाबाद है। अभी क्या वाकया हुआ आपके साथ? सर हमारे साथ यहाँ पर तशद्दुद हुआ गया है। हम दुकान पे बैठे तराने चला रहे पाकिस्तानी, तो कुछ लोग आए, नामालूम अफराद आए यहाँ पर बाइकों पर। कितने बंदे थे? तकरीबन नहीं 30 बाइकें थी और 50-60 बंदे थे। अच्छा। हम तीनों भाई बैठे अपना शॉप पर बैठे कारोबार कर रहे हैं, तो इन्होंने आकर हमें बोला तराने बंद करो।
अच्छा। पाकिस्तानी तराना क्यों चलाया हुआ आपने, ये बंद करो, इससे क्या है आपको मिलेगा। अच्छा। और यही मामला कल दोपहर के टाइम 2 बंदे आए थे, उन्होंने हमारे से बात करी, हमने उनको बोला आप भी इस मुल्क में रहते हो, हम भी इस मुल्क में रहते हैं, हम आज़ादी ये लिए सिर्फ ये तराने आज़ाद होने की खुशी में सुन रहे हैं। ये 60 अफराद जो कोई भी आए थे या 30 अफराद जो कोई भी आए थे, इन्हें ना तो गिरफ्तार किया गया, ना इनके खिलाफ कोई पर्चा काटा गया, ना ही हुकूमत की जेर सरपरस्ती यानी सरकार के अंदर कोई मुकदमा दर्ज किया गया। तो एक तरफ अब ये मामला भी शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है कि वो लोग जो कि मुहिब्बे वतन है, जो पाकिस्तान की आज़ादी के दिन को अपनी आज़ादी का दिन तस्वुर करते हैं, वो लोग जो पाकिस्तान के साथ जीना और मरना चाहते हैं, जिनका इस धरती के अलावा कोई और सहारा नहीं है, और उन्होंने कभी भी इस तरह की गुफ्तगू नहीं की। अगर वो जश्न आज़ादी मनाते हैं तो उन्हें आकर कुछ लोग रोकते हैं, और जब वो लोग रोकते हैं तो उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होती। क्या हुकूमत पाकिस्तान या सरकार इन सबको इस हद तक छूट देना चाहती है कि बाद में जो कुछ भी बलूचिस्तान के अंदर हुआ, जो कुछ भी आपके यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हुआ, क्या उस तरह की सरगर्मियों की तरफ इजाजत देना चाह रही है? बार बार तमाम कौम परस्त रहनुमा इस बात का इजहार क्यों कर रहे हैं कि अगर हमारे खिलाफ सूबे की बात की गई तो फिर उसके बाद यहाँ का हाल भी हम बलूचिस्तान की तरह का करेंगे। तो वो क्या मिसाल देना चाहते हैं? क्या वो पाकिस्तान की रियासत को, पाकिस्तान की हुकूमत को, पाकिस्तान की आवाम को डर और खौफ और बंदूक की नोक पर ये करवाना चाहते हैं कि जिस तरीके से हम चल रहे हैं उसी तरीके से हमें चलने दिया जाए और हमें डिस्टर्बेंस ना दी जाए? इस पूरे मामला के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी है, ये सवाल बहुत ज्यादा अहम है। क्यों ये सवाल है? क्योंकि ये बड़ा ही मुबहम है। एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा इस तरह की गुफ्तगू करते हैं और दूसरी तरफ बहुत सारे कौम परस्त रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से खुलकर सूबे की मुखालफत की बात भी करने का कह रहे हैं। इस सारी सूरत हाल में मामला कहां जा रहा है? क्या अब बहुत सारे ऐसे भी लोग जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है, वो बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि अब सूबे का मामला खत्म हो गया, अब सूबे का मामला खत्म हो गया, अब कोई डील हो चुकी, अब कोई और नया फार्मूले की बात हो रही है। मगर सवाल ये कि अगर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में अगर तकसीम किया जाए तो आखिर उसमें हर्ज क्या है? सवाल ये बनता है कि आखिर हर्ज क्या है, उसकी वजह बताई जाए कि अगर नवाब शाह, मीरपुर खास, सक्खर, घोटकी, चामचोरो, टंडोलाया, टंडो मोहम्मद खान, टंडो जाम, हर जगह को अगर उसके इख्तियारात दे दिए जाए तो आखिर इसमें बुरा क्या है? जब इस दलील की ऊपर गुफ्तगू की जाती है तो उस पर कोई बात नहीं की जाती और उस पर कोई जवाब नहीं दिया जाता, बल्कि उसको कहीं और घुमा दिया जाता है। सिर्फ सवाल ये है कि सिर्फ कराची को आप छोड़ दीजिए, कराची का आप जिक्र मत कीजिए, आप बात कीजिए कि अगर थरपारकर, बदीन, इन सब जगहों पर अगर लोगों को उसके हुकूक उनके डोर पर मिले तो आखिर उसमें बुरा क्या है? बात सिर्फ इस वक्त कराची की नहीं हो रही है, बात उन तमाम डिस्ट्रिक्ट्स की और उन तमाम डिवीजन्स की हो रही है कि जो कि इस वक्त 80 साल होने के बावजूद भी पस्ती का शिकार नजर आ रहे हैं और उनकी बहाल किस तरह से किया जाए। अब मामला यहाँ आकर गंभीर हो गया। अब सवाल बनता है अगला, क्या पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, पाकिस्तान में मुक़्तदरा कुव्वतें क्या इस तरफ जाना चाहती है? आज जब वजीर आला सिंध से एक बार फिर इस हवाले से सवाल पूछा गया तो वजीर आला सिंध ने कहा कि 2/3 मेजोरिटी सिंध असेंबली के अंदर चाहिए होगी। लेकिन अगर पाकिस्तान के आइन में ही तब्दीली कर दी जाए, और आइन में तब्दीली का इख्तियार वफाक को है, जहां पर 2/3 मेजोरिटी के साथ आइन में तब्दीली की जा सकती है और सूबे की तश्कील का कोई नया फार्मूला दिया जा सकता है। जिस तरीके से मैंने आपसे कहा कि 239 में जो तब्दीली ज़िया-उल हक ने की थी, उसी ज़िया-उल हक की तब्दीली को कंटिन्यू रखा गया। बाद में आसिफ अली ज़रदारी की हुकूमत ने, उन्होंने कहा था कि हम ज़िया की तमाम बाकियात को हटा देंगे, लेकिन 239(4) के जिसमें सूबों की तश्कील का फार्मूला दिया गया था, ये भुट्टो की तश्कील करता फार्मूले से बिल्कुल मुख्तलिफ था। भुट्टो की तश्कील करता फार्मूले के अंदर पहले सूबे से करारदाद मंजूर होती थी और फिर वफाक से 2/3 मेजोरिटी से इसे अप्रूव होना चाहिए था। लेकिन ज़िया-उल हक ने यह किया था कि वफाक से पहले मंजूर हो और उसके बाद 2/3 मेजोरिटी के बाद सिंध के अंदर आए। मगर क्या अब दोबारा से नक्शा तब्दील होने की तरफ जा रहा है और सूरत हाल किस तरफ जा रही है? इस वक्त पूरे सिंध के अंदर तनाव की कैफियत मौजूद है। 14 अगस्त के दिन हम सब के जश्न आज़ादी मना रहे हैं। पूरे सिंध के अंदर कई अजला के अंदर कई जगहों पर ये वाकयात रोनुमा हुए कि पाकिस्तान के लोगों को जश्न आज़ादी मनाने से पाकिस्तान के अंदर ही रोका जा रहा है। इनके खिलाफ क्या कोई तादीबी कार्रवाई होगी? और ये सवाल बड़ा ढूंढने की जरूरत है। क्या जो लोग सूबे की या लोगों को इख्तियारात देने की मुखालफत कर रहे हैं वो दर हकीकत कहीं पर ये तो नहीं चाह रहे कि वो पाकिस्तान के खिलाफ बात
कर रहे हैं और वो पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी लगा रहे हैं। ये बात आपको वाज़ेह तौर पर मुख्तलिफ जगहों पर नजर आ जाएगी और यही तनाव की कैफियत आपको मुसलसल नजर आएगी। सवाल एक बार फिर बहुत ज़्यादा है, 14 अगस्त इंशाअल्लाह ताला हम बड़े अकीदत और एहतराम के साथ मना रहे हैं, लेकिन 14 अगस्त के बाद अगले दिन क्या ये तमाम कौम तरस्ती की तहरीक और ये जो लोग जिन्होंने भी पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए उनकी गिरफ्तारियां मुमकिन हो सकेगी या नहीं हो सकेगी? इस सवाल के जवाब के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जवाब जरूर दीजिएगा, आपका मुंतजर रहूंगा।